Confused about whether to take commerce in 11th or not, wondering what are the future prospects and opportunities in commerce. So my dear junior, you clicked on the right video. After watching this video, you will got to know about whether to take commerce in your 11th or not very clearly. And उसके बाद भी कोई doubt बचता हो, then you can do comment in that video and you can book a one-to-one call with me. So hello everyone, this is Aman Rajput, currently pursuing BBA from Delhi Technological University, and I will clear all your doubts, all your myths that is revolving around the commerce field. So काफ़ी people सोचती है कि commerce is easy, केवल वही people commerce ऑप्ट करते हैं who are weak in their studies, और commerce में पैसे नहीं है ज़्यादा, मतलब सैलरी काफ़ी कम है. So guys, these all are the myths that I am going to break down in this video, and yes, so let's get into the video. So if you are a person who comes from a business background and you want to expand your business, then commerce is for you. Or if you want to do your own business, your own startup, and you have entrepreneurial skills, then commerce is for you guys. And if you are not interested in studying science, जैसे कि 9th 10th आपने पढ़ा होगा, and you are not feeling comfortable and feeling not interested in that, like नहीं करना भाई, then commerce is for you. And talking about the पैसा कितना है भाई, commerce में इतना पैसा है ना, you cannot expect. Like the people who is currently pursuing BTech are working under the commerce graduates. Like they are doing MBA after doing BTech. Why switching your favorite bro? क्यों science से commerce में transition ले रहे हो? Because of spike ना. So this is the power of commerce. Like you have a lot of money that you cannot expect. Yes, I think some people सोच रहे हो कि how? Do you know about Elon Musk? He has also done his bachelor's in economics. Like he have 2 degrees in UG level. One is in bachelor's in economics, like something. रिसर्च किया था मैंने. So yes, he is the richest person and doing things in this field. So you can also expect कि कितना स्कोप आने वाला है इसमें. So if you talk about कि what are the things that you can do after your class 12th, so उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे कि what you will going to study in your class 11th or 12th. So अगर मैं class 11th की बात करूँ, then you will study accountancy, जिसमें आपको बैलेंस शीट वगैरह बेसिकली नंबर्स के साथ खेलना होगा. देन इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे माइक्रो लेवल पे वर्क करती है, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे वर्क करती है, एंड व्हाट इज़ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी पास्ट की क्या थी, और ये सभी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी. ग्राफ पढ़ेंगे हम इसमें, काफ़ी थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल्स रहेगी इसमें, तो ये सभी चीज़ें रहती है. देन वी हैव बिजनेस स्टडीज़, एक सब्जेक्ट होता है 11th और 12th दोनों में ही. इसमें आपको बिज़नेस के बारे में पढ़ने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें कि कैसे बिज़नेस वर्क करता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं बिज़नेस में, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है. देन वी हैव इंग्लिश, जो आपका कंपलसरी होता है. देन वी हैव एडिशनल सब्जेक्ट, जो कि आप ले सकते हो, म्यूज़िक, पेंटिंग, या फिर जो कि आपका फाइन आर्ट्स होता है. आप PhD दे सकते हो, कंप्यूटर साइंस दे सकते हो, साइकोलॉजी दे सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है. बट आई विल रिकमेंड कि मैथमेटिक्स को चूज़ करो आप, कोर या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स. अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ रिकमेंडेड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. यस, मतलब अगर आप कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स ऐसे होते हो ना, तो काफ़ी सारे स्कोप्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं. लाइक मैथमेटिक्स आपका साथ नहीं छोड़ने वाला आपके MBA लेवल तक, आपके PG लेवल तक. यू हैव टू स्टडी योर मैथमेटिक्स इन योर UG एंड PG लेवल, वेदर यू विल टेक एनी कोर्स. लाइक आपके कोर्स में भी होगा मैथमेटिक्स, एंड आपके एंट्रेंसेस में भी क्वांट्स होने वाला है आपका. सो यस, इट विल क्रिएट ए फाउंडेशन फॉर यू. एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपके एंट्रेंसेस होते हैं ना, आप एंट्रेंसेस लाइक CUET का GT दे दो, आप IPMAT दे दो, जो कि आप UG लेवल के लिए दोगे, या फिर आप CAT दे दो PG लेवल, तो उसमें आपका एक क्वांट सेक्शन होता है जो कि इससे ही रिलेटेड होता है. तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसको लेते हो. बाकी हाँ, रिकमेंडेड है कि ले ही लेना. देन वी हैव 6 सब्जेक्ट, जो कि आपका होता है, वो भी ऑप्शन होता है, मतलब आपके पास मर्जी होती है कि आपको लेना है या नहीं. Basically, it will help in improving your percentage as a top 5 subject or a combination of top 6 subjects. Basically, overall 6 subject. And आज के टाइम पर इतना कुछ relevance है नहीं. You should have to focus on gaining knowledge. You have to take those subjects in which you are interested. Marks के पीछे मत भागो भाई, आप 12th बेस पे कुछ नहीं होने वाला. You have to give entrance after your 12th. So yes. एंड एंट्रेंसेस के लिए भी अगर अच्छा होगा कि आप 11th से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो. अभी उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से एंट्रेंसेस होते हैं. सो अगर एंट्रेंसेस की बात करें तो देयर आर वेरियस एंट्रेंसेस. सो यू कैन डू कोर्सेज लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज, जो आपके होते हैं, जैसे कि CA, CS, CFA, CRM, ACCA, ये सभी कोर्सेज होते हैं जो आप अकाउंटेंसी की फील्ड में होती है. बेसिकली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स, देन यू कैन डू दिस कोर्सेज अलॉन्ग विद योर कोर्सेज लाइक BCom ऑनर्स. यू कैन डू देम सेपरेटली, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट किसी कोर्स के साथ आप ये करो.
सो इन सभी के अलावा क्या होता है, आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, एंड बीबीए कर सकते हो। यू कैन डू बीएमएस, जो कि बीबीए और बीएमएस लगभग सेम ही होता है, बस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इसको अलग अलग नाम दे देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती है जो कि दोनों कोर्सेज कराती है, बेसिकली स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। लाइक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए और बीएमएस in India, and it is one of the top colleges of Asia. Yes, and SRCC is the top college for BCom honors and BA economic honors. Yes. So ये होता है, and you can do BA in economics if you are interested in GDP वगैरह, economics में आपका इंटरेस्ट है तो yes. वो आप टाइम टू टाइम डिसाइड कर लोगे कि आपको किस में इंटरेस्ट है एज यू कीप ऑन स्टडिंग योर सब्जेक्ट्स इन 11th और 12th। बट हाँ, आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए अलग से, क्योंकि आपके एंट्रेंसेस होने वाले हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर देंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द टॉपिक। थोड़ा सा बात कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ यू हैव टू डू BMS फ्रॉम कॉलेजेस लाइक DU, जो कि काफ़ी फेमस है, तो यू हैव टू गिव GT मैथमेटिक्स, इंग्लिश। सो यू हैव टू गिव टेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, GT जनरल टेस्ट, जिसमें आपका SR आती है, DI आती है, GK आती है, एंड क्वांट्स आता है, देन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास 12th। सो यस, एंड अगर आपको बीकॉम करना है तो उसके लिए आपको डोमेन्स देने होंगे, एंड अकाउंट्स और मैथमेटिक्स ऑप्शन है क्या देना है आपको। उसमें आपको GT की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें आपको इंग्लिश का देना होता है एग्ज़ाम। तो यस, दिस इज अ थिंग, एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस प्रोग्राम जो कि अभी करंटली चल रहा है, IPM, जिसके लिए आपको IPMET का एग्जाम देना होता है, जिसका टॉप कॉलेज है IIM इंदौर। यस, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं IIMs के, जैसे कि IIM रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, एंड देयर आर नॉन IIMs ऑल्सो जो कि काफ़ी टॉप पर है। तो इसमें क्या होता है कि आप 3 ईयर का प्रोग्राम करती हो BBA में या फिर BA में, बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कॉलेज की डिग्री, इन विच यू विल गॉट टू नो अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक हाउ बिजनेस वर्क्स, लाइक इट इज़ लाइक BBA। सो एक प्रोग्राम है जो कि काफ़ी फेमस हो रहा है अमंग स्टूडेंट्स, जो कि है IPM, जिसके लिए आपको IPMET का एग्जाम देना होता है, जिसका टॉप कॉलेज है IIM इंदौर। देयर आर अदर वेरियस कॉलेजेस लाइक IIM रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, एंड नॉन IIMs भी है, जैसे कि IFT काकीनाडा, निर्माण आलसार, काफ़ी सारे कॉलेजेस है। तो बेसिकली दिस कोर्स इज़ अबाउट, इसमें आपको 3 ईयर्स की UG मिलती है, एंड लास्ट की जो 2 ईयर्स है उसमें आपको PG करने के लिए मिलता है। किसमें? तो फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट 3 ईयर्स होते हैं उसमें आप BBA करते हो या फिर BA, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज वो क्या डिग्री प्रोवाइड करता है। बेसिकली आप बिजनेस के बारे में ही पढ़ते हो, 3 ईयर का UG लेवल कोर्स है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स यू विल एंटर इन डूइंग MBA। आप MBA करते हो उसके बाद विदाउट गिविंग कैट, आपको उसके बाद कैट देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो एग्जाम है ना IIM इंदौर का IPMET, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लाइक 1 to 2 ईयर्स। सो इट इज़ बेटर कि आप 11th से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। बट हाँ, the fees is very high in this exam, so yes, you should also consider this course. So I also prepared for this course and eventually not get into the IIMs because I did not prepare really well जितना मुझे करना चाहिए था। So yes, this is the thing, and मेरा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था बाद में इसमें, मतलब because the program fees is very high and the seats are very limited. So yes, you can target multiple exams and see किस में जाते हो आप। And talking about कि MBA के बाद प्लेसमेंट्स कैसे होती है। सी अगर आप टॉप कॉलेजेस देखते हो ना, टॉप IIMs, टॉप नॉन IIMs फॉर MBA और IPMET का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी जो प्लेसमेंट होती है ना आफ्टर डूइंग योर PG, वो एवरेज पैकेज जो आपका होता है वो आपका 20 LPA, 24 LPA होता है। अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूं जो कि है IIM अहमदाबाद, उसका जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 34 LPA जाता है। समझ रहे हो भाई? मतलब बहुत है भाई, बहुत पैकेज है इसमें। एंड जो IIT से अपना BTech करते हैं ना, वो भी IIMs में आते हैं MBA करने अपना। क्यों? ड्यू टू सैलरी हाइक, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा है इसमें MBA में अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो। एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप टॉप कॉलेज से ही करो अपनी जो PG डिग्री है। यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ इन योर UG, मतलब डिपेंड्स वो भी। बट अगर मैं UG लेवल का जो टॉप कॉलेज है शहीद सुखदेव, उसकी प्लेसमेंट की बात करूँ, जो करंट ईयर है उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो उसका जो एवरेज पैकेज गया है वो अराउंड 13 LPA गया है। यस, 13 LPA। एंड और कोई कॉलेज मुझे नहीं लगता जो कि इसके आसपास है। अगर मैं SRCC की बात भी करूँ ना, तो उसका जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 7 LPA है। देख रहे हो कितना गैप है इनमें, BMS और BCom में। So भाई, there's a lot of scope in commerce and you will got to know about how to do business, how to do startups, but हाँ, वो आपको प्रैक्टिकल
करने पर ही मिलेगा, बट हाँ थियोरेटिकल नॉलेज उसकी आप ले सकते हो उसमें। एंड जनरली जो एल्डर जनरेशन है ना, उनके मन में एक ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉमर्स इज़ ओनली फॉर दोज जो वीक है अपने स्टडीज़ में, एंड कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। कॉमर्स में स्कोप बहुत है भाई, मीन्स इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यू विल गो टू नो अबाउट योर वर्ल्ड कि कैसे बिजनेस ऑपरेट करता है, कि तुम्हारे चारों तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। सो यस, एंड हाँ एक बात और, अगर आप साइंस देते हो ना, PCM देते हो बेसिकली, और JEE का एग्ज़ाम देते हो, एंड इवन आप टॉप कॉलेज जैसे कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में चले जाते हो, तो उसका जो एवरेज पैकेज है ना वो कितना है, 23 LPA। यस, एंड अगर आप IIT दिल्ली से अपना BTech करते हो तो उसका जो एवरेज पैकेज है करंटली वो अराउंड 21 LPA, और जो एवरेज पैकेज है MBA का IIT दिल्ली से वो है अराउंड 24 LPA। मतलब IITs अब BBA नहीं, IITs अब आपका BTech और MBA दोनों कोर्स ही कराते हैं, लेकिन IIMS आर द वन जो कि टॉप पर है आपके। तो आपको एक चीज़ और पता चल गई कि IITs में आपका BTech और MBA दोनों होता है, लेकिन IIMS में आपका IPM UG प्रोग्राम और MBA ये दोनों होते हैं। Yes, this is the thing. You have to prepare hard in this. Commerce is not going to be an easy subject. Like accountancy के साथ अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। So yes, अगर आपको मेहनत करनी है तो आ जाओ भाई कॉमर्स में। हसल तो देखो करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े और आप अच्छी अर्निंग करने लगो, नहीं, हसल आपको करनी पड़ेगी। एंड अकाउंटेंसी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसमें। यस, आप ये मत सोचना कि कॉमर्स ईजी है तो आ जाते हैं, नहीं, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड। अकाउंटेंसी में काफ़ी लग जाते हैं, बाकी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ तो ईजी है, एंड अकाउंटेंसी प्लस मैथमेटिक्स एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, विच कैन इम्पैक्ट योर ग्रेड्स इन योर 11th and 12th इवेंचुअली, बट इट डिपेंड ऑन यू कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट। बट हाँ, हमें फोकस करना है कि हमें आगे क्या करना है। लाइक देयर आर स्टूडेंट्स की जो बिना मैथ्स के भी अपना कर देते हैं, लेकिन हाँ जो मैथ्स लेते हैं उनके पास एक एडवांटेज रहता है कि उन्होंने पढ़ी हुई है मैथ्स, तो उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। मैथ्स तो देखो सभी चीज़ में है, लाइक डेटा एनालिटिक्स काफ़ी बूम कर रहा है आज के टाइम पर, तो उसमें मैथ्स का यूज़ होगा आपकी। तो यस, मैथ्स तो ले ही लेना गाइस। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो ना इससे रिलेटेड कि आपको कॉमर्स लेनी है नहीं, तो आप स्केड्यूल कर सकते हो एक कॉल विद मेरे साथ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नहीं करनी कॉल तो कमेंट सेक्शन यूज़ कर दो इफ़ यू वांट, कोई डाउट हो कुछ भी हो। एंड अगर आप का ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है या फिर बायो में ही जाना है, तो वो उसमें जाओ भाई, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बताया, तो आ जाओ भाई, कॉमर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाएगी वाली आपको। एंड अभी मैं अपना DTU में हूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सही है। DTU में आपका BBA होता है और आपका BTech भी होता है, यस, एंड BA इकोनॉमिक्स भी होता है। एंड DTU का बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे आपका BBA एंड BA ही होता है। यस, इट्स इन डिफरेंट कैंपस, ईस्ट दिल्ली कैंपस। मेन कैंपस में आपके अदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि MBA भी होता है तो यस, MBA BTech मेन कैंपस में आपका। सो यस गाइस, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो। सो यस गाइस, यही था आज की वीडियो में, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।